الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں سے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے یہ کہ اس نے انکار کیا، اس کی وجہ تکبر کیا۔ سب سے پہلے کہ شیطان اور فرشتے، ان میں فرق کیا ہے؟ الفرق بین الشیطان والملائکہ، شیطان اور فرشتوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان یہ نار سے بنا ہے اور فرشتے نور سے بنے ہیں۔ نور اور نار، ان کا مادہ ایک ہی ہے، نون واو را، ٹھیک ہے؟ اچھا، نار کا معنی آگ ہے اور نور کا معنی روشنی ہے۔ فرق کیا ہے اس میں؟ اس میں فرق صرف تھوڑا سا ہے، چونکہ مادہ اس کا ایک ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت چینج کر سکتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ کس شکل میں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان کو بھی ہم نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اپنی شکل و صورت چینج کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے نار میں اور نور میں۔ نور کے اندر حرارت نہیں ہوتی، گرمی نہیں ہوتی۔ نور ایسے سمجھیں کہ جس سے صرف روشنی ہو، اس میں گرمی شدت نہ ہو، وہ نور ہے۔ اور نار ہے جس میں روشنی کم ہو، شدت اور گرمی زیادہ ہو۔ یہ فرق ہے اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان کو جو میں نے دھتکارا ہے، اس کو پکا جہنمی بنا دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہے، بچ جاؤ اس سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں قطعاً وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا۔ رائی وہ دانہ ہے جو بندے کو صحیح نظر بھی نہیں آتا۔ سرسوں کا دانہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی باریک ہے رائی کا دانہ، جو ایک بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، صحیح نظر بھی نہیں آتا، بندے کے دل میں اس کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو دنیا میں بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے اکڑنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا یا پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ جائے گا۔ تیری جو اوقات ہے تو نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تکبر اتنی بری چیز ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ہوئی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان اتنی اچھی چیز ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے دل میں تکبر پیدا کرنا چاہیے یا ایمان کی دولت؟ ایمان کی دولت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2620 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العز ازارہ والکبریاء رداؤہ فمن ینازعنی عذبتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العز ازارہ، عزت، معزز، اچھا بننا،
ये अल्लाह ताला का इज़हार है। बंदा क्या अच्छा बन सकता है? बैठा अपनी तारीफ खुद ही करी जा रहा है, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा परहेजगार हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा आला है, मेरा कबीला बड़ा आला है, मैं पता नहीं क्या हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा इज़हार है, मुझे लायक है, मैं अच्छा हूँ, आला हूँ, मुअज़्ज़ज़ हूँ। वल किब्रियाउ रिदाउहु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और जो किबर है ना, किबर तकब्बुर, ये किसे कहते हैं? बड़ेपन को। तकब्बुर किसे कहते हैं? बड़ेपन को। ये जो बड़ापन बनना है ना, ये अल्लाह ताला की चद्दर है। तो अल्लाह फरमाते हैं जिसने इसको हाथ लगाया, इसको छीना, क्या मतलब कि जो बड़ा बना, जिसने तकब्बुर किया, अपने दिल में सोचा कि मैं बड़ा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़बतुहु, फिर उसका इलाज क्या है कि मैं उसको अजाब दूंगा। और सही बुखारी हदीस नंबर 5790 है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैना रजुलुन, 4911 है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अला उख़बिरुकुम बिअहलिन नार कुल्लु उतुल्लिन जव्वादिन मुस्तकबिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुमको बताऊं ना कि जहन्नमी कौन है? अला उख़बिरुकुम बिअहलिन नार, मैं तुमको बताऊं जहन्नमी कौन है? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जव्वाजिन मुस्तकबिर, हर मोटे पेट वाला जो अकड़ अकड़ के चलने वाला है, ऊंची ऊंची बोलता है और बड़ा बनता है, शदीदुस सौत फी शर, बुराई में ना, शर में आगे आगे होता है, सबसे बड़ा मैं हूं। और अकड़ अकड़ के चलने वाला, अपना गिरेबान खोल कर चलने वाला, बुरी आवाज वाला, ऊंची आवाज वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुस्तकबिर, तकब्बुर करने वाला, गुरूर करने वाला, फख्र करने वाला, मान करने वाला, ये अलामत है जहन्नमी बंदे की। जिसको आप देखें ना कि वो बड़ा बन के चलता है, तकब्बुर गुरूर करता है और कहता मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इलाके में मेरा नाम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये अलामत है जहन्नमी बंदे की। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 5790, क़ाल बैना रजुलुन यजुर्रु इज़ारहु इज़ खुसिफ़ा बिही फहुव यतजलजल फिल अर्द इला यौमिल क़ियामा। एक बंदा चल रहा था, अकड़ के चल रहा था, ये उसका जो इज़ार बंद है ना, ये टखनों से नीचे था, ये भी तकब्बुर की अलामत है ना। बड़ा बन के चल रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक धंसता जाएगा। क्या औकात है इंसान की? अकड़ के चल रहा था ना, गली में, सड़क पे अकड़ अकड़ के चल रहा था तो अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया। उसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने आप को बचा ले, तो क्या फ़ायदा अकड़ने का? बड़ा तो तू है ही नहीं है, तेरा तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो अल्लाह के कंट्रोल में और अल्लाह के इख्तियार में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद फरमाई है मुतकब्बिर बंदे के बारे में। तो मेरे भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा सबब जो उसने अल्लाह की नाफरमानी की वो तकब्बुर है। वो जहन्नुम में जाएगा, वो पक्का जहन्नमी है, तकब्बुर है इसकी अलामत और इसका सबब तकब्बुर है। तो लोग जहन्नुम में जाएंगे जिन पर अल्लाह का गजब होता है, किस लिए कि वो तकब्बुर करते हैं। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैथु शिअतुमा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाते हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा उस्कुन अंत वज़ौजुक, रहो, रिहाइश पजीर हो जाओ, आप और आपकी बीवी, फिल जन्ना, जन्नत में, वकुला मिनहा रगदन, जहां से चाहो जो चाहो खाते रहो, वला तक़रबा हादिही शजरा, लेकिन शर्त है कि इस दरख्त के करीब मत जाना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम चले गए तो फिर तुम दोनों अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे।
चूंकि हर गुनाह जुल्म है, कोई भी गुनाह बंदा करता है ना तो वो क्या है, वो जुल्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है वो कहाँ से आई? अल्लाह ताला ने उनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 3331 है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन निसाई फ़इन्नल मरअ खुलिक़त मिन दिलाइन व इन्न आवज शैइन फ़ि दिलाई आलाहु फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरता व इन तरक्तहु लम यज़ल आवज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तौसू बिन निसा, औरतों के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में मेरी वसीयत ले लो। मैं तुम्हें ये वसीयत कर रहा हूं कि अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो। क्यों? फरमाया फ़इन्नल मरअ खुलिक़त मिन दिला, औरत जो है ये पसली से पैदा की गई है, और सारी पसलियों में से जो सबसे टेढ़ी पसली है वो सबसे ऊपर वाली है। उधर से ये पैदा की गई है और ये टेढ़ी है। इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ दी है? पसली के साथ, कि औरत टेढ़ी है, आसान तरीके से इसके साथ जिंदगी निभा ले, गुजार ले। अगर तू कहेगा ना कि मैंने इसको सीधा करना है, उसके साथ जिद लगाएगा, तो फरमाया फिर क्या होगा? फ़इन ज़हाबता तुक़ीमुहु कसरता, फिर तू उसको तोड़ देगा। तो तोड़ने का क्या मतलब है? वो तलाक ले लेगी। अगर तेरे साथ वो चल रही है, दीन पे है, तो हट जाएगी, तलाक ले लेगी, न जाने क्या क्या कुछ करेगी। उसके साथ जिद मत लगाओ। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने अहल के लिए बेहतर हूं, तुम अपनी बीवियों के लिए बेहतर बनो। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुल लिअहली। और इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ अगर बंदा जिंदगी गुजारे तो जो कहो ये करती हैं। लेकिन अगर हम जिद लगाएंगे कि मैंने ये काम करवाना है, तूने ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो सारी जिंदगी बंदे की अजाब बन जाती है, लेकिन ये सीधी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको घरों में अमन और सुकून दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत वसीयत है आपकी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसके साथ गुजारा करो अच्छे तरीके से, इसको समझाओ, इसकी इस्लाह करो और इसके साथ अच्छे तरीके से रहो। अगर तुम चाहोगे कि मैं इसको सीधा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो फिर ये क्या होगा? टूट जाएगी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को, जिनको अल्लाह ने उनकी पसली से पैदा किया है, जन्नत में दाखिल कर दिया। और ये कौन सा दिन था? सही मुस्लिम हदीस नंबर 854। अन अबी हुरैरा यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्स यौमुल जुमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दिनों में से जो दिन है वो कौन सा है? वो जुमे का दिन है। फीही खुलिक़ आदम, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वफ़ीही उदखिलल जन्ना, और ये वो दिन है जुमे का जिस दिन अल्लाह ताला ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम आओ अपनी बीवी को ले लो और जन्नत में रिहाइश पजीर हो जाओ, मैंने तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो मेरे भाइयों, आज के हमारे इस दर्स से ये साबित हुआ कि सबसे पहले नंबर पे हमने तकब्बुर से तौबा करनी है और इससे बचना है। इंशाअल्लाह हम कुछ नहीं है, ना चीज़ है। और दूसरा, औरतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीयत है उस पे हमने अमल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।